Hi guys, this is Dr. Pritesh Singh, your surgery faculty, and with me is Dr. Meet Patel, who secured tremendous score of 241 in this FMG January 2025. Congratulations, Meet. Tell us something about yourself. Thank you so much, sir. Sir, my name is Meet Jitendra Bhai Patel, sir. I am graduated from the Bukovinian State Medical University, Ukraine, sir. And I scored, sir, 241 in recent FMG, sir. So you started your preparation from which year? First year, second year, third year? कौन से साल से तैयारी start की थी? Sir, I prepare preparing from the third year, Third year. but actually main focus on the exam from the fourth year onwards. मतलब फोर्थ ईयर से Mainly focus on the FMG ध्यान देते हैं. exam from. अच्छा, तो फोर्थ ईयर में Yes, मेन sir. कौन कौन से सब्जेक्ट्स को टारगेट किया था कि फोर्थ ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट करना है, फिर उसके बाद कौन कौन सा करना है? I started from the preclinical subjects like pathology, pharmacology, physiology, and microbiology ओके. from non-clinical to clinical, sir. नॉन क्लिनिकल टू क्लिनिकल. ओके. So almost one time you finished your whole Yes, sir. syllabus before coming to India? Yes, sir. Sir, I completed my syllabus before 6 months coming to the India, sir. Okay, before 6 months. And I revised all main subjects in the Ukraine on or also, sir. Okay. So how many revisions you gave? I mean, for these subjects? Sir, in the last 6 months, I mainly focused on the sir rapid revision videos, and maybe I revised it 7 to 8 times, sir. मतलब 7 8 times revise कर लिया. That's really great. So after coming to India, you were just bothered about revision and you were focusing on rapid revision videos. Sir, few subjects I made my handmade notes. For Okay. that subjects I revised from the Handmade notes. main videos, and few and those subjects other subjects by the rapid revision video, sir. Okay. And how frequently you were appearing for previous year questions? How frequently you were solving GTs? Sir, regularly after the completing the subjects, I solve all the previous year MCQ of the FMG, and during my second revision, I solve all the previous year MCQ of NEET PG, sir. Okay. And sir, I frequently give GT, sir. Every Sunday I give GTs, and remaining 6 days, sir, I solve 50-50 MCQs of that GT, like 300 MCQs divided by 6 days, Six. 50-50, and every Sunday I give GT, sir. I give maybe 19 GTs, sir. Okay. And what was your एवरेज स्कोर इन द जीटीज? मतलब शुरू में पहले स्कोर कैसा था और लास्ट तक कैसे स्कोर इंप्रूव हुआ? Sir, I started from 180 and 180 and sir बीच में सर थोड़ा प्लेटू हो गया था, मतलब ओके. 195 to 210 प्लेटू हुआ था सर. हाँ और हाँ. उसके बाद थोड़ा सा जंप आया था टू 240 250 सर. इन लास्ट 3 GT सर आई स्कोर मोर देन 250. ओके, तो मतलब ये स्कोर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है. 240 250 एंड दिस स्कोर इज 241. Yes, sir. Amazing performance. This is Yes, sir. really amazing. I got sir. Thank you, sir. I got sir 237 in the champion GT, prep leader champion GT. ओके, आई वाज 237. टॉकिंग टू मेनी स्टूडेंट्स और मैंने देखा कि चैंपियंस जीटी में उनका जितना स्कोर था 5 से 10 मार्क्स का ही ज्यादा वेरिएशन था, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं था. Yes, sir. ठीक है. स्टूडेंट्स एक Yes, और sir. क्वेश्चन जानना चाहते हैं जो मेरे से पूछते रहते हैं कि सर लास्ट मंथ, क्योंकि जैसे ही सिलेबस उनका हो जाता है ना, एक उनके मन में एक एंग्जाइटी हो जाती है कि अब क्या करें, अब कैसे पढ़ें, अब कैसे रिवाइज करें, बहुत ज़्यादा हो गया है. सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी स्पेशली फॉर द लास्ट मंथ? सर मेन सब्जेक्ट्स के लिए सर मैंने ऐसी नोट्स बनाई थी कि हर सब्जेक्ट 60 to 70 पेजेस में मैंने कवर किया था. और ओके. मैंने सोचा था कि लास्ट मंथ में हर मेन सब्जेक्ट्स मतलब जो सर्जरी, मेडिसिन, ओबीजीवाई एंड पीएसए में मैं एक दिन में कंप्लीट कर सकूं, ऐसी मैंने नोट्स बनाई थी सारी. और सर मैंने ऐसे. लास्ट मंथ में वही नोट्स पढ़ी है. और बाकी के छोटे सब्जेक्ट्स तो सर आराम से मैं 1 1.5 दिन में पढ़ सकता था. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. और इस बार का एग्जाम का क्या अप्रोच था? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर पेपर वन थोड़ा टफ था, पेपर टू कंफर्टेबल था. सो व्हाट वाज योर ओपिनियन अबाउट द एग्जाम? सर जेन्युइनली मेरे को भी पेपर वन टफ लगा था. एक्चुअली
कंफ्यूजिंग कम था, एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा ज्यादा थी, मतलब कि जो नोन नहीं थी वो चीजें ज्यादा थी, कंफ्यूजिंग नहीं कम था। और सेकंड पेपर वॉज गुड फॉर स्कोरिंग था, सेकंड पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब जो बिल्कुल प्रीवियस ईयर स्ट्रेट टॉपिक्स रहता फॉरवर्ड। है वैसा ही कुछ कुछ पेपर था। यस ओके, एंड सर। स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी विद सर्जरी एंड गायनी. What was your opinion about the यस surgery? सर। Yes, sir. I also feel, sir, gynae is very easy. Surgery, I think it's moderate. I also feel medicine was also easy, Okay, and ENT is also easy in okay. second part. राइट. सो व्हाट इज योर एडवाइस टू द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर द एग्जाम, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है बड़ा स्ट्रेस्ड होते हैं. जीटी देना और एक्चुअल एग्जाम में अपीयर होना, बहुत Yes. सारे स्टूडेंट्स में फियर स्ट्रेस ज़्यादा होता है. इसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाती है. व्हाट इज योर एडवाइस? Yes. Sir, I advise, sir, study limited sources that and study that for multiple times and solve maximum MCQ and give maximum GTs, ओके. as many as you can possible. राइट. सो मिनिमम रिसोर्सेज मीन्स वन source per subject, maximum number of times, Yes, sir. and give Maximum maximum number of number of time. questions. Yes, Solve maximum number maximum of number of questions. Yes. questions. राइट. देखिए, दो Yes, तरह sir. के स्टूडेंट्स हैं जैसे हमारे पास. एक तो फ्रेशर्स हैं जो कि अभी पहली बार अपीयर होंगे एग्जाम के लिए, और Yes. दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार से ट्राई कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम से. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ना एक थोड़ा सा स्टिग्मा हो जाता है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है. सो हाउ दे शुड बी अप्रोचिंग द नेक्स्ट सेशन, स्पेशली रिपीटर्स. Sir, basically for focusing on the same source, don't jump to another source, don't change the source, and sir, just revise multiple times. That's it, and राइट. solve as many MCQ as possible, sir. राइट. MCQ and revision is the key, sir. राइट. सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ये भी देखे Yes, हैं कि वो sir. क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते. तो वो एक स्किल डेवलप नहीं होता, वो Yes, टाइम sir. That's मैनेजमेंट. very important. राइट. राइट. सो योर लास्ट मैसेज Yes, sir. मीन्स व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द नेक्स्ट सेशन. Sir, I said, sir, basically simple basic से तैयारी start करो. Basic should be clear. Non-clinical should be your strong part, and non-clinical strong होगा तो clinical automatically strong हो ही जाएगा. और ज्यादा फोकस मतलब नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे करना चाहिए, जैसे कि मैंने पीएसएम और उन पे ज्यादा फोकस किया था. उस स्कोरिंग में मेरे को पीएसएम स्कोरिंग लगता है, मेरे को फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री स्कोरिंग लगता है, तो मैंने ज्यादा फोकस उस सब्जेक्ट्स पे किया था. मैंने मेडिसिन पे कम फोकस किया था, क्योंकि आई नो कि फार्मा पैथो मिला के मेडिसिन ज्यादा हो ही जाएगा. ओके. राइट. सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्शन गायनी, पीएसएम, पैथ, फार्मा, माइक्रो, ये 7 सब्जेक्ट्स तो करना ही करना है. यस, मेडिसिन थोड़ा वास्ट है, तो आपका जैसे करना ही करना है. कवर हो सकता है फार्मा, पैथ से. तो इन सब्जेक्ट्स को भी छोड़ना नहीं है. और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो एक दो सब्जेक्ट छोड़ के जाते हैं, उसमें काफ़ी डिफिकल्टी होती है. तो आई थिंक कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं चाहिए. सो नहीं रिवीजन नहीं एंड सर. सॉल्विंग. Sir, because paper is also unbalanced paper, sir. Sometimes they ask from one subject many question, and राइट. maybe अपने जो सब्जेक्ट छोड़ दिया उसमें ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो अपने बिल्कुल डिमोटिवेट सही. हो जाएंगे. एग्जैक्टली. ओके. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, मीट So अगेन. we have to focus on all subjects, sir. Right, right. Thank you, sir. So congratulations again for your wonderful performance. I hope that students are going to gain a lot from this interview. Congratulations to you and your family too. Thank you so much, sir. Thank you.